ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں خبر دن بھر. شروعات کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. سرخیوں کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ڈاکٹر آرتھو آئل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آرتھو کیپسولز ساتھ لینا نہ بھولیں. ایودھیا میں تناؤ کا ماحول. کانگریس لیڈر اجے رائے کو نظر بند کیا گیا. کشوری لال شرما کو رام مندر درشن کی نہیں دی گئی اجازت. ترووننتپورم میں نیٹ پیپر لیک معاملے کے خلاف کانگریس کا احتجاج. مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ. لوک بھون تک احتجاجی مارچ نکالا گیا. اتر پردیش کے رامپور میں وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں 690 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز. کہا رامپور کو ترقی کی نئی رفتار ملی. ممبئی میں طوفانی بارش. سی ایس ٹی، کرلا اور ایئرپورٹ کے وی آئی پی گیٹ پہ پانی گھسا. چیمبور میں اسکولی بس پر گرا درخت. ایک طالب علم کی موت. آندھرا پردیش کے وجے واڑہ ایلورو قومی شاہراہ پر بھیانک سڑک حادثہ. 3 افراد ہلاک، 2 شدید زخمی. دوحہ میں ایران اور قطر کے درمیان اہم مذاکرات. امریکہ سے مفاہمتی معاہدے اور منجمد فنڈز پر ہوگی گفتگو. امریکی سپریم کورٹ کا ٹرمپ کے صدارتی اختیارات کے حق میں بڑا فیصلہ. برتھ رائٹ شہریت کیس پر سب کی نظریں مرکوز. اور اب خبروں کی تفصیل. اتر پردیش میں کانگریس لیڈروں کو رام مندر کے درشن سے روکا جا رہا ہے. پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اجے رائے کو رام مندر کے درشن سے روک دیا گیا. اسی طرح کانگریس لیڈر کشوری لال شرما کو بھی درشن کی اجازت نہیں دی گئی. انہیں ایئرپورٹ سے لوٹا دیا گیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کشوری لال شرما نے کہا کہ میں رام مندر کے درشن ضرور کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنے دیا گیا. مجھے زبردستی ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا. اگر آج واپس بھیجا جا رہا ہے تو میں دوبارہ آؤں گا اور درشن ضرور کروں گا. کشوری لال نے اس معاملے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی مقامات پر جانے اور عبادت کرنے کا حق ہر شہری کو حاصل ہے. درشن نہیں کرنے دیا، لیکن اور میرے کو یہاں زبردستی پکڑ کے ایئرپورٹ پہ لے کے آئی. ٹھیک ہے، پولیس لے کے آئی اور یہاں کا ایڈمنسٹریشن لے کے آیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے کو اس درشن سے ونچت نہیں کر پائیں گے. آج روک لیں گے، میں کل آؤں گا، کل روکیں گے، پرسوں آؤں گا. پرسوں کتنے دن روکیں گے یہ میرے کو؟ میں تو ان کو اتنا تک کہا کہ میرا آئیڈینٹی کارڈ رکھ لو. ٹھیک ہے، میرے کو درشن کرنے دو کہ سارن ناگرک کی طرح درشن کرنے دے دو. کانگریس کے سینئر لیڈر کے سی وینو گوپال نے رام مندر کے چندے میں مبینہ خرد برد کے معاملے پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ بھگوان کے سونے اور رقم کی کھلی چوری ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وینو گوپال نے سوال اٹھایا کہ کیا یہی رام بھکتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس معاملے پر عوام کو جواب دے. This entire theft of golden money of Ram Temple happened by the BJP and Sangh Parivar. It is done by the trust office under the supervision of trust office bearer. Trust had been nominated by the government of India. Your Prime Minister has to answer it. کانگریس کے سینئر لیڈر راشد الوی نے رام مندر کے چندے میں مبینہ خرد برد کے معاملے پر بی جے پی اور آر ایس ایس کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ اگر چندے میں بے ضابطگیوں کے الزامات درست ہیں تو اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. راشد الوی نے کہا کہ مذہبی مقامات پر عوام کی جانب سے دی جانے والی رقم امانت ہوتی ہے، اس لیے اس کے استعمال میں مکمل شفافیت اور جواب دہی ضروری ہے. سر، جس طریقے سے رام مندر میں چڑھاوے کی چوری ہوئی ہے، اس کو لے کر کیا کچھ کہنا چاہیے؟ دیکھیے، اس سے زیادہ نندنیہ کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. بھارتی جنتا پارٹی آر ایس ایس بہت شور مچاتی تھی کہ برس کی لڑائی کے بعد رام مندر بنایا ہے. تو کیا اس لیے بنایا تھا رام مندر؟ آج وہاں پہ کروڑوں روپے کی چوری کر لی ان لوگوں نے جو لوگ اس مندر کے رکھوالے ہیں.
मुकुट चोरी कर लिया, इससे बड़ा जुल्म और मुजरिम कोई हो नहीं सकता है। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे आप? उनके एनकाउंटर्स क्यों नहीं हो रहे? उनको तो जुडिशियल कस्टडी के अंदर आपने भेज दिया। आप तो बोलते हैं कि 7 जन्म तक याद रखेंगे लोग जो कानून के खिलाफ वर्जी करेगा। तो इनको अयोध्या में राम मंदिर के चंदे में मुबैना खुर्द-बुर्द के मामले की तहकीकात के सिलसिले में पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। पुलिस राय के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने चंपत राय से मुबैना माली बेज़ाब्ती और चंदे से मुतल्लिक़ दस्तावेजात के बारे में पूछताछ की है। इस मामले में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से तकरीबन 80 लाख रुपए नकद और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई है। राम मंदिर चंदा खुर्द-बुर्द का मामला सियासी रंग इख्तियार कर चुका है और अपोजिशन जमातें इसकी शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात जारी है। केरला के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए लोक भवन तक एहतजाजी मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने हाथों में पार्टी के झंडे और प्ले कार्ड उठा रखे थे और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाज के दौरान कांग्रेस रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि तालीमी शोबे से मुतल्लिक़ मामला पर मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों ने तलबा और तालीमी इदारों के मफादात को नुकसान पहुँचाया, जिसके बाइस वज़ीर तालीम को अखलाक की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए। पुलिस की निगरानी में मार्च पुरअमन अंदाज में मुनक्किद हुआ, जबकि मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपने मुतालबात पर फौरी तवज्जो देने की अपील की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 690 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 102 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत आने के बाद रामपुर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, जिसने तरक्की की राह हमवार की। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक हुकूमतों के दौर में रामपुर के मशहूर चाकू अवामी ज़मीनों पर कब्जे के लिए इस्तेमाल होते थे, जबकि आज यही चाकू अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की अलामत बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। यही तो रामपुर का विकास है। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नाजिया इलाही के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। एहतजाजी अफराद ने दिल्ली गेट के करीब मौजूद डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पर जमकर एहतजाज किया। इस एहतजाज में AIMIM के नासिर सिद्दीकी और समीर साजिद बिल्डर भी शरीक थे। एहतजाज करने वालों का मुतालबा था कि नाजिया इलाही खान को गिरफ्तार किया जाए और ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत किसी भी मजहब के बारे में कोई बुरी या तौहीन आमेज बात ना कही जा सके। आज हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत हुकूमत के सामने पेश कर सके। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि हम जमहूरियत के दायरे में रहते हुए अपनी बात हुकूमत तक इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। हुकूमत तक ये बात पहुँचानी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलूनों के खिलाफ आपने मकोका के तहत गुनाह दाखिल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है, मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। मुंबई में बीती रात से मुसलसल बारिश हो रही है। CST, कुर्ला और एयरपोर्ट रोड पानी में डूब गए हैं। चेंबूर इलाके में शदीद बारिश के दौरान स्कूल बस पर पीपल का दरख्त गिरने से एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें 11 साला तालिब इल्म जान की बाजी हार गया, जबकि 5 बच्चे जख्मी हुए। इतला के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 12 बच्चे सवार थे। बस का अमला और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू करते हुए तमाम बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकाला। जख्मी होने वाले 5 बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। करीब 2 बजे के करीब
मुझे यहाँ के स्थानिक लोगों ने फ़ोन किया था यहाँ से जाते वक्त, तो उन्होंने बोला कि ऐसा पेड़ गिरा है करके। तो हम लोग यहाँ पर आए, तब तक पुलिस वगैरह, स्थानिक पुलिस, डीसीपी साहब आए थे और फायर के भी लोग आए थे यहाँ पर। एक 12 लोग करीब थे, 12 बच्चे, उसमें से एक की शायद डेथ हो गई है, क्योंकि लास्ट में वो बच्चे को निकालने में थोड़ा टाइम लग गया। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने मगरबी बंगाल हुकूमत पर जमहूरी एहतजाज को रोकने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी जमहूरी तरीके से किए जाने वाले एहतजाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी इसकी मुखालफत सियासी और कानूनी दोनों सतहों पर करेगी। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में हर सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज का हक़ हासिल है और इस हक़ को महदूद करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ आईनी और कानूनी तरीके से जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। जुलाई में जो हम लोग जो एप्लीकेशन किया है उसको रिजेक्ट किया है। हम लोग सोच रहे हैं क्या करेगा, कहाँ मीटिंग करेगा नहीं करेगा, हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन 21 जुलाई होगा और बंद करने नहीं सकेगा। अभी आम आदमी पार्टी के दिल्ली कन्वीनर सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली हुकूमत पर सरकारी अस्पतालों में मुबैना बदउनवानी और टेंडर घोटाले का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले का मरकजी किरदार राजीव नामी शख्स है जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से महकमे सेहत के खरीदारियों से वाबस्ता रहा है। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक FIR में राजीव का नाम मुतअद्दिद बार दर्ज है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि FIR में 650 करोड़ रुपए के मुबैना घोटाले का जिक्र मौजूद है, लेकिन हुकूमत और तफ्तीशी एजेंसियां असल मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर को गिरफ्तार करके मामले को दबाने की कोशिश कर रही हैं। और छोटी छोटी कंपनियां 200 करोड़ का टर्नओवर नहीं होता तो वो नहीं कर पाती। एक्सपीरियंस मांगेंगे 10 साल का कि सरकार के साथ 10 साल का काम किया हो तो वो कंपनी भी बाहर हो जाएगी। ऐसी स्पेसिफिकेशन फाइनेंशियल और टेक्निकल रखी जाएंगी कि आम कंपनियां जो दिल्ली सरकार के साथ काम करती हैं वो टेंडर नहीं भरेंगी। आंध्र प्रदेश के अमरावती में वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने कैंप दफ्तर में महकमे कानकनी के काम का तफसीली जायजा लिया। इजलास में रियासती वजीर रविंद्र, चीफ सेक्रेटरी साई प्रसाद, महकमे कानकनी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकेश कुमार मीना और महकमे खजाना के आला अफसरान शरीक हुए। जायजा इजलास के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि बीच सैंड, रेयर अर्थ मिनरल्स और खाम लोहे जैसे कीमती मादनी वसाइल में वैल्यू एडिशन के जरिए रियासत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल की जा सकती है। इन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि मादनी वसाइल के मार्केट कैपिटलाइजेशन के इम्कानात का तफसीली मुताला किया जाए ताकि कुदरती वसाइल से ज़्यादा इक़्तिसादी फ़ायदा हासिल किया जा सके। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और इल्लुरु को मिलाने वाले नए कौमी शाहराह बाईपास पर पेश आने वाले एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक मालबरदार ट्रक मुखालिफ सिम से आने वाले दूसरे ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद वो बेकाबू होकर एक कार से टकराया। इस तसादुम में कार में सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि एक और मुसाफिर शदीद जख्मी हुआ। इस हादसे के दौरान ऑयल टैंकर के करीब स्कूटर पर सवार एक शख्स भी हादसे की जद में आकर जा बहक हो गया है। अमेरिका में मुतय्यना हिंदुस्तानी सफ़ीर विनय क्वार्टर ने कहा कि साल 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मईशत बनने का हदफ मुकर्रर किया है और ये हदफ मुल्क की तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के ज़रिए हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान में मुतय्यना अमेरिकी सफ़ीर सर्जी गौर ने इंडो पैसिफिक कमांड के नाम की तब्दीली पर जारी इतराज़े को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा कि नाम की तब्दीली के बजाय अमेरिका के अमली इक़दामात को अहमियत देनी चाहिए। गौर ने कहा कि हिंदुस्तान आज भी अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें करता है और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन मुसलसल जारी है। यह बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका ने कुछ दिन कबल इंडो पैसिफिक कमांड का नाम दोबारा पैसिफिक कमांड कर दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने वाज़ेह किया है कि ईरानी और कतरी हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे ताकि अमेरिका के साथ होने वाले याददाश्त मुफ़ाहमत और मुंजमद ईरानी फ़ंड्स के मामले पर बातचीत की जा सके। वक़ाई के मुताबिक अमेरिका के नुमाइंदे और स्टीवकोफ भी दोहा में मौजूद हैं, ताहम दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात के इम्कानात अभी गैर यकीनी हैं। दोहा में जारी ये सफारती सरगर्मियाँ ख़ित्ते में कशीदगी और माली तनाज़ात के हल की कोशिशों के तौर पर देखी जा रही है।
और इसी दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप ने दोहा में जारी सिफारती सरगर्मियों को अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि इजलास मुस्तकबिल के लिए इंतहाई फैसला कुन साबित हो सकता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप से मुतालिक अहम फैसलों के जरिए सदारती इख्तियारात पर एक नई आईनी बहस को जन्म दिया है। 6 के मुकाबले 3 वोटों से किए गए फैसले में अदालत ने कहा कि अमेरिकी सदर आज़ाद वफाकी इदारों के अरकान को बगैर वजह बताए बरतरफ कर सकते हैं। अब सबकी नजरें मंगल को होने वाले इस फैसले पर है जिसमें ट्रंप के बर्थ राइट सिटीजनशिप से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ चैलेंज पर समाअत का फैसला सामने आ सकता है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक कई अहम फैसले सुनाते हुए सदारती इख्तियारत पर नई बहस छेड़ दी है। अदालत ने 6 के मुकाबले में 3 वोट से फैसला दिया है कि सदर आज़ाद फेडरल इदारों के अरकान को बगैर वजह बताए भी बर्खास्त कर सकते हैं। ये फैसला फेडरल ट्रेड कमीशन की रुकन रेबेका स्लॉटर की बर्खास्तगी के केस में सामने आया, जिन्हें ट्रंप ने अपने ओहदे से हटा दिया था। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले के दूर रस असरात अमेरिकी हुकूमत के आज़ाद इदारों पर पड़ सकते हैं। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट के अगले बड़े फैसले पर हैं, जहां मंगल को ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज करने वाले मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा, जिसका मकसद बर्थराइट सिटीजनशिप यानी अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे को खुदकार शहरियत देने के आईनी हक को ख़त्म करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बर्थराइट सिटीजनशिप के मामले में वो सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले को कबूल करेंगे। ट्रंप ने अपने बयान में उम्मीद जाहिर की कि अदालत आइन और कानून की बुनियाद पर फैसला करेगी। Accept it's the Supreme Court, so I'll accept. I think it's very bad for our nation. We're the only nation that does it. No other nation does that birthright citizenship. No, not even close. Some did it, they ended it. It's tremendously destructive. It's extremely costly. I don't know, it's up to them. But in terms of for the good of the country, it would be great if they didn't allow it. It would be great, but I can't tell you. रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में कम अज कम 12 शहरी हलाक और तकरीबन 40 जख्मी हुए। मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। पीर को होने वाले हमलों में कम से कम 12 आम शहरी हलाक जबकि तकरीबन 40 अफराद जख्मी हो गए। वस्ती शहर निप्रो में रूसी मिसाइल ने बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जहां 6 अफराद जान की बाजी हार गए और 29 जख्मी हुए। जुनूबी शहर जापोरिशिया में एक रूसी ड्रोन ने मुसाफिरों से भरी मिनी बस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि एक बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी हुए। शुमाल मशरकी सुमी रीजन में भी ड्रोन हमले में एक 69 साला खातून और 77 साला शख्स हलाक हुए, जबकि खारकीव में दिन दहाड़े होने वाले हमले में एक शख्स मारा गया और 5 अफराद जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक मुल्क के कम से कम 6 दीगर इलाकों में भी हमले किए गए, जबकि रूसी बमबारी के बाद 8 इलाकों में बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुनक़ता हो गई। सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को खौफनाक करार देते हुए कहा कि शहरियों को ऐसे हमलों से महफूज रखने के लिए यूरोप को फौरी तौर पर अपना एंटी बैलिस्टिक दिफाई निज़ाम और जदीद मिसाइल सलाहियतें मजीद मजबूत बनाना होगी। माहिरीन का कहना है कि अगरचे रूस मुसलसल फजाई हमले कर रहा है, लेकिन हालिया महीनों में यूक्रेन के तवील फासले तक मार करने वाली ड्रोन हमलों ने रूसी तेल की तंसीबात और सप्लाई लाइन्स को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिससे रूस के ज़ेरे कब्जा इलाकों में ईंधन की किल्लत पैदा हुई और फौजी रसद मुतासिर हुई है। इससे कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इतवार के रोज एतराफ़ किया कि यूक्रेन की रूसी तेल की तंसीबात पर तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन हमलों की वजह से ईंधन की किल्लत पैदा हुई है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि रूस अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखेगा और जंग में किसी किस्म की रियायत नहीं देगा। इस बुहरान की वजह से लोगों में गुस्सा और मायूसी फैल गई है, जिससे वो गैस स्टेशनों पर लंबी कतारों में इंतजार करने पर मजबूर हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग अब सिर्फ महाजी जंग तक महदूद नहीं रही, बल्कि दोनों ममालिक एक दूसरे की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई लाइन्स को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे में बढ़ते हमलों ने न सिर्फ इंसानी जानों बल्कि पूरे खित्ते की अमन और तवानाई के निज़ाम पर भी नई सवालात खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। वेनेजुएला में गुज़िश्ता हफ्ते आए तबाहकुन ज़ल्ज़लों के बाद जहां एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं पीर की सुबह एक ताकतवर झटके ने मुतासरा इलाकों में खौफ की नई लहर दौड़ा दी है। इमदादी टीमें गुज़िश्ता हफ्ते आए ज़ल्ज़लों में मुमकिना जिंदा अफराद की तलाश में मसरूफ़ है, जबकि हलाकतों की तादाद 1700 तक पहुँच चुकी है और हज़ारों अफराद अब भी लापता हैं।
वेनेजुएला में पीर की सुबह आने वाले जलजले के ताज़ा झटकों ने दारुल हुकूमत कराकस समेत कई इलाकों में लोगों को एक बार फिर घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आफ्टर शॉक की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि कोलंबिया के जियोलॉजिकल इदारे ने इसकी शिद्दत 5.1 बताई। हुक्काम के मुताबिक नए झटके से फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम शहरी खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आई। गुज़िश्ता हफ्ते की हलाकत खेज जल्जले के बाद अमवात की तादाद 1700 तक पहुंच गई है और हजारों अफराद अब भी लापता हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने खदशा जाहिर किया है कि जल्जले की शिद्दत और तबाही को देखते हुए अमवात की मजमूई तादाद 10,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान तक जा सकती है। इस हलाकत खेज जल्जले से अब तक 774 इमारतें मुकम्मल तौर पर जमीन बोस होकर मलबे का ढेर बन चुकी हैं। हुक्काम के मुताबिक जल्जले के बाइस 15,000 से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं और 50,000 के करीब अफराद अब भी लापता हैं, जिसकी वजह से हलाकतों में मजीद होलनाक इजाफे का खदशा है। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली बंदरगाही शहर ला ग्वायरा में मकामी और बैनुल अक़वामी इमदादी टीमें दिन रात मलबा हटाकर जिंदा अफराद की तलाश जारी रखे हुए हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जल्जलों में अब तक 1700 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि हजारों अफराद ताहाल लापता हैं। हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयों में सुस्तरवी पर शदीद तनकीद का भी सामना है। माहिरीन के मुताबिक कुदरती आफात के बाद इब्तिदाई 48 से 72 घंटे जिंदा अफराद को तलाश करने के लिए इंतहाई अहम होते हैं, ताहम अगर मुतासिरीन को पानी और खुराक मुयस्सर हो तो बचने के इम्कानात मजीद बढ़ सकते हैं। कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज का कहना है कि वक्त गुजरने के बावजूद सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत के मुताबिक दुनिया भर से 2600 से जायद रेस्क्यू एहलकार तरबियत याफ्ता कुत्तों और भारी मशीनरी के साथ इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। इमदादी टीमें अब भी मलबे तली जिंदगी की कोई निशानी तलाश करने के लिए कोशा हैं, जबकि मुतासिरा इलाकों में आफ्टर शॉक्स शहरियों में खौफ व हरास और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। शेयर बाजार में मंगल के रोज भी मंदी का सिलसिला जारी रहा और मुसलसल दूसरे दिन हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार रही। आईटी और तवानाई के शोबों में फरोख्त के रुझान ने सरमायाकारों के एतमाद को मजीद कमजोर कर दिया, जबकि अमेरिका और बाज़ एशियाई मार्केट में कुछ हद तक बेहतरी देखी गई। तो अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। स्टॉक मार्केट में आज भी लगातार दूसरे दिन मंदी का रुझान गालिब रहा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 249 पॉइंट्स की कमी के बाद 77,000 के करीब 76,478 पर बंद हुआ, जबकि दौरान तिजारत ये 399 पॉइंट्स तक नीचे भी आया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 80 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 23,865 की सतह पर बंद हुआ। आईटी सेक्टर में नुमाया कमजोरी, तेल और गैस के हिस्स में फरोख्त और बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव ने मजमूई रुझान को मनफी सिमत दी है। साथ ही आलमी सतह पर गैर यकीनी सियासी सूरत हाल भी सरमायाकारों की फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। आईटी शोबे की मारूफ कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा सभी मंदी की लपेट में रहे, जबकि मारुति, टाइटन और बजाज फाइनेंस जैसे चंद हिस्स में मामूली बेहतरी देखी गई। गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से भी फरोख्त का सिलसिला भी बरकरार रहा और 1,350 करोड़ रुपए से जायद की इक्विटीज मार्केट से निकाली गईं, जिसने सूरत हाल को मजीद कमजोर किया। आलमी मंडियों में अगरचे अमरीका और बाज़ एशियाई मार्केट्स में बेहतरी देखी गई, ताहम मकामी सतह पर सरमायाकार मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं। निफ्टी एक बार फिर 24,000 की नफसियाती हद बरकरार रखने में नाकाम रहा है। मजमूई तौर पर मार्केट में गैर यकीनी की फिजा बरकरार है और सरमायाकार आइंदा मुआशी व आलमी इशारों के मुंतजिर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।